A very good evening to all of you. Today we all are here for the session Overcoming the Fear and Anxiety of COVID. And we have with us Mr. Nakul Agrawal to help us to attain clarity over all this chaos. Before we start the program, I would like to introduce Mr. Nakul Agrawal. Nakul Agrawal is a young mystic helping people to choose their greatness. He is on a mission to usher the next leap of human evolution by bringing a consciousness revolution. He is doing so by empowering everyone with the clarity and capability to find answers to all the questions about life they have been long searching for. His work is helping people live a life of deeper peace, greater wisdom, and higher contribution, thereby creating a conscious, curious, and compassionate world. As the founder of Renovatio Foundation, he has envisioned and continues to lead groundbreaking projects on innovative education, resource mobilization, and environmental interventions in multiple cities, touching lakhs of lives since almost a decade now. He is also the founder of AHAM, which is set up to disrupt the wellness industry by democratizing well-being through its AI and deeper learning engine, facilitating a human's evolution in all the dimensions. He has studied chartered accountancy, but his spiritual awakening had catapulted him on a journey to impact lives more than balance sheets. Hence, within a brief span of 4 years, he has given more than 300 talks, including a TEDx talk, and impacted the lives of innumerable individuals across the world. He has also been invited to conduct sessions for the Indian paramilitary forces, central jail prisoners, and reputed organizations. He has also shared the stage with several national and international thought leaders, sharing his views on a wide range of topics relating to our life. He has been interviewed and his work has been greatly talked about by several media entities, be it newspaper, magazines, radio stations, digital outlets, influencers from across the world. His work has brought him recognitions such as the Mayor's Innovation Award, Times of India Heroes Award, Harappa Habit Heroes Award, GEC Young Changemakers Award, to name a few. A multifaceted personality, he is also a dancer, a yogi, a poet, and a force for the good in the world. We thank you, Mr. Nakul Agrawal, for being with us today. Now, further ado, I hand over the session to Nakul Agrawal. Thank you all. Good evening, everyone, and thank you so much, Yogita ma'am, for the beautiful introduction. I hope I stand up to your words, and I also hope that I am clearly visible to everyone, because perhaps I see Yes, the you are. screen dull. Okay, perfect, great. So I would also like to request everyone who is here in the session to please turn on their videos if they can, and if Chitnavi Center permits it, so that we can have an interactive session. Those who cannot turn on their videos for whatever reason, I would request them to keep answering my questions in through chats, because that will help all of us to remain engaged. So आज के सेशन का टॉपिक है गाइस, ओवरकमिंग द एंजाइटी एंड फियर ऑफ कोविड. सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आप में से कितने लोग कोविड से डर रहे हैं, कितने लोगों को एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, फियर आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है. Just say yes in the comment section if you are also undergoing some sort of stress, anxiety or fear because of COVID. Because हम जानते हैं कि कोविड ने एक ऐसी सिचुएशन हम सबके सामने खड़ी कर दी जो सैकड़ों सालों में कभी नहीं हुई, हम सबके जिंदगी में कभी नहीं हुई ऐसी सिचुएशन, राइट, जहां इतनी अनसर्टेनिटी है सब जगह सामने है. आप खुद या आपके परिवार वाले कभी भी उससे कहीं भी और कैसे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, और इन्फेक्ट होने के बाद बहुत मुश्किल है
हॉस्पिटल का बेड पाना, दवाई पाना, एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कई लोग गुजर जा रहे हैं। ना सिर्फ वो लोग जिन्हें कोई मॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, बल्कि वो लोग भी जो कि थोड़े से ठीक-ठाक है, स्वस्थ है। हमने सेकंड वेव में से कई लोगों को देखा। दोस्तों, आप सभी का डरना ज़ाहिर तौर पे लाज़मी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई। और अगर आप कहते हैं कि हमें इस चीज़ की बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, तो हम समझते हैं कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बिकॉज़ दोस्तों, हम सिचुएशन तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम इस सिचुएशन में हमारा क्या रिस्पॉन्स है, इस सिचुएशन का हम पर क्या इम्पैक्ट है, हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये कि आपके अकॉर्डिंग एंग्ज़ायटी क्या है? प्लीज़ आंसर इन द कमेंट्स, व्हाट इज़ एंग्ज़ायटी अकॉर्डिंग टू यू? और क्या आपको एंग्ज़ायटी सिर्फ़ कोविड की ही है, या ज़िंदगी में और भी ऐसे कई मौके आते हैं कि आपको एंग्ज़ायटी फ़ील होती है? डू यू फ़ील एंग्ज़ियस अबाउट मेनी थिंग्स इन लाइफ़ और जस्ट अबाउट कोविड? तो मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा। कम ऑन एवरीवन, व्हाट इज़ एंग्ज़ायटी अकॉर्डिंग टू यू? एंड डू यू ओनली फ़ील एंग्ज़ियस बिकॉज़ ऑफ कोविड or also because of other things in life? All right. Mhm. Perfect. दोस्तों, कई लोगों ने सही कहा है, जो सोशल मीडिया पे हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए और रिप्लाई कर रहे हैं। एंग्जाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अनईज, एक कांस्टेंट बेचैनी जो हमें महसूस होती है डर के कारण, कि अगर कल मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे साथ कल वो हो गया तो क्या होगा? और मैं जानता हूँ आप में से कई लोग इससे गुजर रहे हैं, ना सिर्फ कोविड के कारण, पर और भी कोविड से उलझे इमर्ज हुए कई कारणों के कारण। किसी को एंग्जायटी है कि कल मुझे नौकरी कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरा बिज़नेस वापस से रिज़्यूम होगा कि नहीं होगा? कमाई आएगी कि नहीं आएगी? इतना सारा लोन ले रखा है, वो कैसे चुकाऊँगा? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? जो रिलेटिव बीमार है, उनका क्या होगा? अगर कोविड हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, तो उसका खर्चा, उसके खर्चे का क्या होगा? अगर मुझे कुछ हुआ, तो मेरे बाद मेरे अपनों का क्या होगा? हम सब लोग जो एंग्ज़ियस फ़ील करते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ के कारण, असल में एंग्ज़ायटी कुछ नहीं है, बल्कि एक कांस्टेंट सेंस ऑफ डर है। हम एंग्ज़ायटी इसीलिए महसूस करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आने वाले कल के बारे में डरते हैं। पर आप ही बताइए, क्या ये ज़रूरी है कि आने वाला कल डरावना ही हो? आने वाला कल तो अच्छा भी हो सकता है ना? और इनफैक्ट आने वाले कल में क्या होगा, ये तो कोई जान ही नहीं सकता। पर जब हम ये सोचते हैं या ये मानते हैं कि आने वाला कल अच्छा होने वाला है, तो हमें उसी के लिए एक्साइटमेंट फ़ील होता है। और जब हम ये सोचते हैं कि वो बुरा होने वाला है, तो हमें नर्वसनेस या एंग्ज़ायटी फ़ील होती है। सही कह रहा हूँ ना? तो क्या ये एक्साइटमेंट और एंग्ज़ायटी एक ही सिक्के के 2 पहलू नहीं हुए? अगर आप गौर से देखेंगे, तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो कल अभी आया नहीं है, वो जो हो सकता है वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोच-सोच के ही हमने अपने आप को परेशान कर दिया है। हमें बहुत तक टेंशन होता है, हमारी रात को नींद उड़ जाती है, लगातार हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हमारा खाना-पीना रुक जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमें बहुत स्ट्रेस फ़ील होता है कि नहीं? तो अगर दोस्तों ये एंग्ज़ायटी आने वाले कल के डर के बारे में है, तो इससे फ्री होने के लिए, इससे आज़ाद होने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डर को समझें, राइट? आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? In order to overcome anxiety, you need to overcome fear.
और फियर को ओवरकम करने के लिए फियर क्या है हमें समझना ही होगा, राइट? सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू आंसर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज फियर. डू यू फियर? सबसे पहले क्या आप सबको डर लगता है? कब लगता है? कितना लगता है? और असल में डर होता क्या है और क्यों लगता है? Come on, I would love everyone to communicate via comments. What is fear? Why do you feel this fear? आपको डर महसूस क्यों होता है? वह डर क्या है? आप कमेंट्स में कहना चाहेंगे सब लोग? ऑल राइट. वैसे मीनवाइल जब आप सब लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन में शायद मेरा फेस बहुत डार्क दिख रहा है. सो आई एम नॉट श्योर कि मैं आप सबको क्लियरली दिख भी रहा हूँ कि नहीं. तो अगर मैं आप सबको क्लियरली नहीं दिख रहा हूँ तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिए. आई कैन चेंज माई पोजिशन अ बिट, इन अ वे कि मैं आप सबको बहुत क्लियरली दिख पाऊँ. I hope you have no fear from telling me at least कि कैसा आपको मैं दिख रहा हूँ. Alright. Okay. तो दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंगली कई लोग सोचते हैं कि डर हमें तब होता है जब हमें लगता है हमारे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ अनसर्टन होगा, कुछ गलत होगा. लेकिन मैं आपको बता दूं, डर असल में आने वाले कल में क्या होगा ये उसका उतना नहीं है. डर हमें जो होता है वो इसका होता है कि जो आज हमारे पास है शायद वो कल नहीं होगा. Fear is not about the tomorrow that is going to come because that is uncertain ना. अच्छा भी हो सकता है और फिर हमें excitement होगा. Fear is about losing that which you have today in the tomorrow which would come. Very important. डर हमेशा आने वाले कल का नहीं, आने वाले कल में आज जो है उसे खोने का होता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, तो फेल होने का उनको डर होता है. यंगस्टर्स को नहीं, फेल होने का डर नहीं है. उन्हें डर इस बात का है कि आज जो हम शांति से, खुशी से, इज्जत से जी रहे हैं, कल अगर हम फेल हो गए तो हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे, हमें चिढ़ाएंगे. उन्हें अपनी इज्जत को खोने का डर है. किसी को अपने पीस ऑफ माइंड को खोने का डर है. किसी को अपनी आजादी को खोने का डर है. लोग जिनके जॉब छूट जाते हैं उनको जॉब से मोहब्बत नहीं है, पर उन्हें जॉब के कारण जो पैसा कमाई हो रही है, जिसके कारण उनको सिक्योर्ड फील हो रहा है, उन्हें उस चीज को, उस इनकम को खोने का डर है. किसी को लगता है कि मेरी कार को कुछ हो गया तो, मेरे फोन को कुछ हो गया तो. आप देखिए, हम जिस भी चीज से डरते हैं असल में वो इस बारे में नहीं कि कल वो चीज होगी ही, वो इस बारे में कि आज जो है अगर कल वो हुआ नहीं तो फिर क्या. और इसलिए जो हमको कोविड के कारण अधिकतर लोगों को डर है वो इसी बात का है कि अगर हमने ये जिंदगी जो हमारी है, ये अपने जो हमारे हैं, ये चीजें जो हमारी हैं, या ये सपने जो हमारे हैं, अगर कल हमने इसे खो दिया तो क्या होगा. पर दोस्तों आप ही बताओ कि अगर हम कल कुछ खोने वाले हैं या कल कुछ खोने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, चांस है, तो हम आज उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम कल कुछ खोने वाले हैं तो हम आज उसके लिए क्या कर सकते हैं? वेल, हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं कि या तो हम उसे खोए ना, राइट, या अगर खोए तो हमारा नुकसान कम से कम हो, यानी कम से कम चीजें खोए, या फिर
खोने के बाद किसी तरीके से हम उसे दोबारा रिकवर कर ले, जिसके लिए लोग अक्सर इंश्योरेंस कराते हैं कि नुकसान हो भी तो हमें पैसा मिल जाए, मतलब हम दोबारा उससे रिकवर कर ले। चीज नहीं पर उसका कॉम्पेंसेशन सही है कि नहीं। आप आने वाले कल में अगर कुछ खोने वाले हैं तो ज्यादा से ज्यादा आज उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप ही बताइए ऐसे में, अगर आपको कल कोविड हो गया या आपको कोई अपना कोविड के कारण खो गया, तो आप उसके लिए आज क्या कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि हम आज उसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं। हम उसके लिए जो मास्क, सैनिटाइजर, अच्छा इम्यूनिटी बूस्टिंग खाना, योग, प्राणायाम, च्यवनप्राश, इंश्योरेंस में भी हम यही सब कर सकते हैं ना। तो सिंपल है दोस्तों, जिस चीज के लिए जो कुछ आज कर सकते हो वो कर लो, और जिसके लिए कुछ नहीं कर सकते उसके बाद में सोच के फायदा भी क्या, उससे सोचना छोड़ो, राइट। क्योंकि सोच सोच के हम आज जब वो चीज हमारे पास है, चाहे वो कोई अपना हो, पैसा हो, इज्जत हो या जिंदगी हो, हम आज उसके होते हुए भी उसका मजा नहीं ले रहे। और असल में हमें खोने का डर उसी को होता है ना, जिस चीज के कारण हमारी जिंदगी में थोड़ी सी सुख और सुविधा, शांति, खुशी होती है। तो जिस चीज के कारण आज आपको खुशी मिल रही है, आज उसके होते हुए भी अगर आप वो खुशी को महसूस ना करते हुए वो चिंता या वो डर ही महसूस करो, तो कल उसे खोने पर आप पछतावा करोगे कि नहीं? ऐसा कोई भी जो पछतावा नहीं करेगा? क्या ऐसा कोई है जिससे आज तक पछतावा नहीं हुआ, जिसे गिल्ट नहीं हुआ, या शायद आज नहीं होता है? जितने भी लोग हैं आप बताइए मुझे कमेंट्स के जरिए, आपको जिंदगी में किसी ना किसी बात का गिल्ट है कि नहीं? आपको जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई चीज का गिल्ट हुआ है या नहीं हुआ है? दोस्तों, अगर आपको गिल्ट हुआ है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप आज ऐसा सोचते हैं कि कल मैंने वो चीज के होते हुए ये क्यों नहीं किया, कल मैंने उसे जब मैं ये कह सकता था तो मैंने क्यों नहीं कहा। अक्सर आशिकों को होता है। कल जब मैं उस पैसों का मजा ले सकता था मैंने क्यों नहीं लिया, कल सेहत अच्छी होते हुए मैं घूम सकता था तो मैंने क्यों नहीं किया, कल जब मेरे पास समय था जिसे मैं अपने परिवार को दे सकता था तो मैंने क्यों नहीं दिया, है कि नहीं? हमें अफसोस उस बात का होता है जिसके होते हुए हमने नहीं किया, उसका नहीं जो हमारे पास नहीं है, उसका जो हमारे पास थी और उसके होते हुए भी हम उसके साथ कुछ कर ना सके जो करना चाहते थे। तो अगर आपको कोविड की एंजाइटी है या किसी भी और चीज की एंजाइटी जिंदगी में, आपको खुद को सिर्फ ये 2 सवाल पूछना है। पहला, क्या मैं आज कुछ कर सकता हूं उस सिचुएशन को कल होने से रोकने के लिए, या उसका नुकसान कम करने के लिए, या उसका नुकसान की भरपाई करने के लिए? अगर हाँ आज कुछ कर सकता हूं तो क्या कर सकता हूं, कैसे, और करना शुरू कर देता हूं। और दूसरा, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर मैं उसकी चिंता करके भी क्या कर सकता हूँ? जब तक वो चीज है मेरे पास, चलो कम से कम उसकी मैं मजे तो लूं, कम से कम उसके होने की खुशी तो मनाओ, कम से कम उसका कोई कल पछतावा ना हो। इसके लिए तो खुद को उस पर लुटाओ। और अगर हम सिर्फ इतना करेंगे दोस्तों तो आप पाओगे कि आपकी जितनी भी एंजाइटी है वो एक बहुत बड़े लेवल पे कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ये एंजाइटी मतलब डर, और डर कि आप 2 ही चीज कर सकते हैं, या तो उससे लड़ सकते हैं या उससे दौड़ सकते हैं।
तो लड़ने का मतलब हुआ उसका सामना करना, और दौड़ने का मतलब वेल कुछ होने नहीं वाला है उसको, हमको लगता है, तो फिर उसे एक्सेप्ट करना और उससे पीछे छुड़ाना, उससे दूर होना, उसको दिमाग से निकालना। जो होगा जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये हुआ नहीं है, और हम जानते हैं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, है ना। आप जानते हैं कि आपके सारे डर आज तक सच नहीं हुए, इनफैक्ट आपके अधिकतर डर तो कभी सच नहीं हुए। उदाहरण के लिए, सभी को बचपन में या शायद अभी भी भूत से डर लगा है। और आप बताइए, आज तक किसी को भूत देखा? किसी का भूत से सामना हुआ? किसी को भूत ने परेशान, टॉर्चर, ऐसा कुछ किया? नहीं किया ना। तो अगर भूत का डर होते हुए भी हमें भूत नहीं दिखा और नहीं कुछ हुआ, तो फिर हमारा भूत से डरना व्यर्थ हुआ ना? हुआ कि नहीं, आप बताइए। ऐसे अलग अलग एंगल पे देखना, कैमरा का घूमना, वो हॉरर शो में हमारा आंखें का फटना, और फिर थर थर कांपना कि क्या पता शायद ये हो जाए। आप कहेंगे सर आप कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं। वेल आप सब बच्चे रहे हैं और शायद आज भी है, और आप सभी ने ये देखा है, ये महसूस किया है, और शायद ये जिया है कि नहीं? लेकिन ये होने के बाद भी आपका भूत से सामना नहीं हुआ। तो दोस्तों वैसे ही, अगर आपको कोई चीज का डर है, तो आप जानते हैं कि आपके सारे डर पूरे नहीं होते, सच्चाई में नहीं बदलते, असली नहीं होते। एंड thus हमें अपने मन को, अपने माइंड को इसके काबिल बनाना है, चाहे डर आए लेकिन वो हमें परेशान ना कर पाए। हमारा कोई भी डर एंजाइटी में तब्दील ना हो। ये एंजाइटी क्या है? किसी एक चीज के होने के बारे में लगातार सोचते जाना, वो एंजाइटी है। जब हम डर को समझ जाएंगे और उसे मैनेज करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करना शुरू कर जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि हम डर को मिटा पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर, हम जानते हैं कि कोविड हमें होगा या कुछ और नुकसान होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। वो हमें ना हो, इसके लिए भी हम पूरी कोशिश करते हैं, हम सारे प्रिकॉशन लेते हैं, हम सारी तैयारी करते हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं, हम जो हो सके सब करते हैं। पर सर, सब कुछ करने के बाद भी उसके होने का ख्याल मन से जाता नहीं। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, जो अपने फियर के कॉज को समझते हैं, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए एफर्ट्स भी लेते हैं, फिर भी उसके होने की चिंता को खुद से हटा नहीं पाते, फिर भी अपने आप को उस फिक्र से दूर कर नहीं पाते, फिर भी उसमें उलझ के ही रह जाते हैं? कितने हैं बताइए मुझे कमेंट्स में, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, और होता है कि नहीं होता है? ग्रेट। तो दोस्तों, अब ये दूसरी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि डर क्या है हम उसे समझे, एंजाइटी क्या है हम उसे समझे। हमने समझ लिया, हम उसके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, हमने वो स्टेप्स भी ले लिए। अब जब स्टेप्स लेने के बाद भी वो खत्म नहीं हो रही है, तो अब हमें उसके रूट कॉज को समझना है। इस चिंता का, इस बेचैनी का, इस तनाव का, इस अवसाद का, इस फिक्र का रूट कॉज क्या है, मूल कारण क्या है? और दोस्तों, इसका रूट कॉज है आपका ये मन, जो आपके काबू के बाहर है। आपका ये मन जो आपके काबू के बाहर है,
तभी तो लगातार वो एक ही चीज के बारे में सोचता जा रहा है, क्योंकि आपने तो उसे कह दिया कि भाई मैं इसको रोकने के लिए जो कर सकता हूँ सब कर रहा हूँ, और अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ तो आज इसके पूरे मजे लेने की कोशिश भी कर रहा हूँ। पर ये कमबख्त आपको लगातार याद लाता है, अरे नहीं फिर भी अगर हो गया तो, फिर भी हो गया तो, फिर भी हो गया तो, फिर भी हो गया तो। आप कह चुके हो अरे हुआ तो हुआ, आप क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, और जो कर सकते वो कर लिया। हाँ लेकिन फिर भी हो गया तो। ये आपको चैन से रहने ही नहीं देता। दोस्तों, जब ऐसा हो तो समझो कि फॉल्ट इसमें है और सिचुएशन में नहीं। ये सिचुएशन तो सभी के लिए है, लेकिन सब एंजाइटी में तो नहीं, सब फियर में तो नहीं। कुछ लोग तो बड़े बिंदास है, वो तो प्रिकॉशन लेते तक नहीं, है कि नहीं? तो कारण यही है कि आपका माइंड जो है वो लगातार उस चीज के बारे में सोचता रहता है। इनफैक्ट आप खुद मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनका मन लगातार आने वाले कल के बारे में या फिर बीते हुए कल के बारे में सोचता नहीं रहता? कितने लोग हैं? या ऐसा बताइए कि आपका मन दिन में कितने बार या कितना परसेंट सिर्फ थॉट्स में खोया रहता है, चाहे वो फ्यूचर के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो किसी के भी हो। बताइए मुझे, कम ऑन। दिन में कितना परसेंट टाइम्स आपका माइंड थॉट्स में उलझा रहता है? 10% ऑफ द डे, 20% ऑफ द डे, 80% ऑफ द डे, 90% ऑफ द डे, 100% ऑफ द डे? कम ऑन, कहाँ रहता है आपका मन, और कितना लॉस्ट रहता है अगर रहता है तो? इनफैक्ट अगर मैं आपको यही पूछूं कि जब से ये सेशन शुरू हुआ है, कितने लोगों का ध्यान, कितने लोगों का मन सिर्फ और सिर्फ मुझ पे, मेरी शक्ल पे और मेरी बातों पे रहा है, तो मुझे यकीन है ऐसा एक भी नहीं। आप सबके मन में 100 ख्याल आए हैं, हाँ सही है, सेशन के बाद मुझे ये करना है, कल तो वो हुआ था, अच्छा ये ऐसा कर रहा है, अच्छा ये वैसा क्यों हो रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे सिर्फ सुन रहे हैं और सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उसी पे ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ वहां कहीं नहीं भटक रहे? आप सब भटके हैं ना, और शायद अभी भी भटक रहे हैं। वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका मन बेचैन है। सॉरी, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका मन बेचैन है। आप जानते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मन एक दिन में 60,000 विचारों में उलझा रहता है। 60,000 थॉट्स कम इन अ डे। 60,000, 60। सोचा है आपने कभी? 60,000 विचार किस बारे में? क्या सारे विचार प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, किसी काम के बारे में? बिल्कुल नहीं। असल में हम इंसान इस लम्हे में, इस वर्तमान में जो हो रहा है उसमें रहते ही नहीं है। हम लगातार बीते हुए कल की याद में या आने वाले कल की फरियाद में ही खोए रहते हैं। इतने कि हमारे मन को आदत हो गई है यहाँ, इस लम्हे, इस वर्तमान की जगह बाकी सब जगह रहने की। आपने वो झूला देखा है कोलंबस? अक्सर अम्यूजमेंट पार्क में होता है, जो एक स्विंग होती है और बीच में झूला यहाँ 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 झूलता रहता है। देखा है ना? सबका मन कुछ वैसा ही हो गया है, हुआ है कि नहीं? या तो पास्ट में गया, फिर नीचे आया, हमें लगा प्रेजेंट में है, पर नहीं, फ्यूचर में गया, फिर फ्यूचर से वापस आया पास्ट में, फिर फ्यूचर में, फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर में। आप देखिए, आप सोचिए, आपका मन लगातार सिर्फ ख्वाबों में और ख्यालों में खोया रहता है, इस वर्तमान में जीता ही नहीं। ऐसा कितनी बार होता है कि आप सिर्फ रुक कर जो चिड़ियाओं की आवाज है सिर्फ उसे सुनते रहे,
सिर्फ उस डूबते हुए सूरज को ताकते रहें, सिर्फ उन चलते हुए बादलों को उड़ते रहें, सिर्फ उन ठंडी हवाओं को महसूस करते रहें, सिर्फ कुछ ना करे हुए भी जीवित रहें इस लम्हे में। कितनी बार ऐसा होता है और कितनी देर के लिए होता है? बहुत कम ना, आप समझे? और जो एक छोटा सा बच्चा होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी, आपने उसको ऑब्जर्व किया है? आपको क्या लगता है, एक छोटा बच्चा ज्यादा खुश होता है कि आप ज्यादा खुश है जिंदगी में? आप खुद ही बताइए। पर अक्सर सब कहते हैं कि काश हम दोबारा बच्चे हो जाए, काश हम अभी भी बच्चे होते। ऐसा क्यों कहते हैं आप? इसीलिए क्योंकि आपको ऐसी याद है कि आप उस समय ज्यादा खुश थे कंपेयर टू जितने आप आज है। जबकि आज आपके पास ज्यादा आजादी है, आप अपनी मर्जी के मालिक है। जब छोटे थे तब तो मर्जी के मालिक थे ही नहीं, माता पिता पे निर्भर थे, फिर भी आपको लगता है कि आप तब ज्यादा खुश थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बच्चे थे, आप अपने मन से, अपने माइंड से सिर्फ इस वर्तमान में जीते थे। और जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप इमेजिन करते गए, आप कल्पना करते गए, फिर आप अपने फेरी लैंड में जीते रहे। मैं डॉक्टर हूँ, तू डॉक्टर है, मैं ये हूँ, तू पुलिस वाला है, मैं चोर हूँ। सिंड्रेला, पॉपाई, न जाने कितने कार्टून्स की कहानियों में आप खोए रहे। मतलब समय के साथ साथ आप इमेजिन करते गए क्या हो सकता है। और आज आज आप प्रेजेंट को भूल चुके और सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं। वो भी ये नहीं कि कितना अच्छा हो सकता है, बल्कि अगर ये हो गया तो, अगर वो बुरा हो गया तो, बेइज्जती होगी तो, इंसल्ट होगी तो, पैसा चला गया तो, नुकसान हो गया तो, सेहत खराब होगी तो। हाँ, अगर और मगर हम इसी में उलझ के रह गए। और जो है अभी इधर, उसे हम भूल गए, है ना? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, हमें किसी ने कभी समझाया ही नहीं, हमें कभी किसी ने कराया भी नहीं। क्या ऐसा कुछ जिससे हम वर्तमान में रह पाए? और दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कल्पना करना, इमेजिन करना, फ्यूचर के बारे में सोचना गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सोचना गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इमेजिन करना गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने पास्ट को याद रखना गलत है, अपने फ्यूचर को क्रिएट करना या ड्रीम करना गलत है। ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन लगातार सिर्फ वही करते रहना जानलेवा है। जानलेवा, ये सच है दोस्तों। जितने लोगों को आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मार रहा है, उतनों को और कोई बीमारी नहीं मार रही, कोविड भी नहीं मार रहा दुनिया में। आप जानते हैं इस बात को? और ये सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब क्यों है? इसी कारण कि आपका मन लगातार अटका हुआ है, या तो जो हो गया उसमें, या जो कल हो सकता है उसमें। आपने कभी किसी बच्चे को देखा है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, या ओवरथिंक करते हुए, या उसको रातों की नींद उड़ जाए तो? कभी नहीं देखा आपने ना। वो कितनी चैन की नींद सोते हैं कि नहीं? इसलिए इसीलिए कि वो वर्तमान में रहना और जीना जानते हैं। तो अगर आपको अपने मन को इस जाल से मुक्त करना है, इस डर के जाल से, इस फिक्र के जाल से, इस चिंता के जाल से, इस तनाव के जाल से, इस बेचैनी के जाल से, इस नींद ना आने के जाल से, इस पछतावे के जाल से, अगर आपको अपने आप को इन सारे जालों से आजाद करना है, तो उसके लिए आपको अपने मन को काबिल बनाना होगा। आपको उसे काबिल बनाना होगा कि वो आपके अनुसार चले, ना कि आप उसके अनुसार।
फिलहाल आप उसके अनुसार चलते हैं, वो आपके अनुसार नहीं। अगर यकीन ना हो तो मैं अभी आपको सिद्ध कर देता हूँ। आप में से जितने भी लोग इस समय मुझे देख या सुन रहे हैं, उसमें से कोई भी इस समय ऑरेंज कलर के बंदर के बारे में नहीं सोचेगा। आप समझे? किसी को भी ऑरेंज कलर के बंदर के बारे में नहीं सोचना है। आप कह दीजिए अपने मन को कि आपको ऑरेंज बंदर के बारे में नहीं सोचना है। क्या हुआ? सबसे पहले ऑरेंज कलर के बंदर का ही ख्याल आया ना। ख्याल क्या आंखों के सामने दिख गया, जबकि जिंदगी में शायद कभी ऑरेंज कलर का बंदर नहीं देखा। शायद क्या, पक्का ही नहीं देखा, होता ही नहीं है। पर सबकी आंखों में ऑरेंज कलर का बंदर की इमेज आ गई। क्या है? अगर आपके मन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल नहीं तो, कि आपको कहा गया कि आपको नहीं देखना है, नहीं सोचना है, फिर भी आपके मन ने झट से उसके बारे में सोच लिया, तो बताइए ऐसे में आपका मन आपके काबू में है कि मेरे काबू में, जो इस समय मैं बात कर रहा हूँ? अगर उसने आपकी नहीं सुना और मेरी सुन लिया, तो मतलब वो मेरे काबू में हुआ ना। दोस्तों यही हो रखा है। आप देखिए, आपका मन आपके अलावा बाकी सबके काबू में है। घर आपका है, लेकिन चाबी सबके पास है सिवाय आपके। कोई उसे कुछ कह के गुस्सा दिला देता है, कोई उसे कुछ कह के डरा देता है, कोई उसे कुछ कह के बहुत आसमान में उड़ा देता है, और कोई उसे कुछ कह के नीचे दबोच देता है। कि आप तो ये सब नहीं चाहते। आप तो यही चाहते हैं कि आप हर पल खुश रहो, हर पल शांत रहो, हर पल मजे में रहो, हर पल बिंदास रहो। चाहते हैं कि नहीं? कोई है यहाँ जो कुछ और चाहता है? आई होप यहाँ पे अलकायदा या जैश ए मोहम्मद से नहीं है जो खुशी और शांति के अलावा कुछ और चाहता हो। हम सब सिर्फ खुशी और शांति चाहते हैं ना। बावजूद इसके हम कितना खुश और कितना शांत महसूस कर पाते हैं, सोचिए। हमारा मन हर पल अशांत होता है, हर पल ये मूड से वो मूड में झूलता रहता है। आसपास की सिचुएशन, माहौल, लोग, कुछ भी हो जाए, हमारा मन यूं झट से करवट बदल लेता है। और कारण क्या है? कारण ये है कि हम अपने मन को कभी जानते नहीं, समझते नहीं, और उसे ये सिखाते नहीं कि वो सिर्फ हमारी सुने और किसी और की नहीं। है कि नहीं दोस्त? आप कहते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। मैं कहता हूं आपको इन सब में से कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका बस ये जो मन है, ये बेकाबू हो रहा है। क्योंकि इतने समझदार तो आप सब है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढे, और अगर उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करे, और नहीं कर सकते तो ये कबूल करे कि हम कुछ भी कर नहीं सकते। इतनी समझ सब में है ना। इफ यू कैन डू समथिंग देन डू इट, इफ नॉट देन forget it, ignore it, move on from it. Still you persist on it, and you trouble yourself about it, and you feel sick of it, and you are tired of it. The extent you decide to leave your life because of it. होता है कि नहीं? आप इन सब चीजों से इतने पागल हो जाते हैं कि कई लोग अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर जाते हैं। हम इंसान जिनके पास इतना दिमाग, इतनी अकल, इतना कंफर्ट, इतनी सुविधाएं, इतना कुछ है जिंदगी में देखने, जानने, करने के लिए, जो किसी और प्रजाति के पास नहीं इस पृथ्वी पे, वो ये सब को छोड़ के सुसाइड कर लेते हैं। और मुझे यकीन है आप सब किसी न किसी इसको जानते हैं, इसने किया है।
ये रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था, क्यों किया उसने? पैसा, इज्जत, दौलत, सब कुछ था उसके पास जो आप जिसके पीछे दौड़ते हैं, जिससे आपको सिक्योर फील होता है, फिर भी उसने खुद की जिंदगी को ही छोड़ दिया। दोस्तों ये इसलिए करते हैं लोग क्योंकि वो अपने दर्द और तकलीफ से खुद को अलग नहीं कर पाते, और क्योंकि वो दर्द और तकलीफ से खुद को अलग नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने आप को इस जिंदगी से ही अलग कर जाते हैं। मुझे लगता है इस दर्द को खत्म करने का यही तरीका है कि हम इस जिंदगी को खत्म कर दें। तो मेरे पास कम से कम 40 से 50 ऐसे लोग आए हैं आज तक, कम से कम मैं कह रहा हूँ, जो क्लिनिकली सुइसाइडल थे, मतलब जो रस्सी खरीद चुके थे और उस पर लटकना कैसे सीख चुके थे, जो नींद की गोलियां खरीद चुके थे, जो 2-3 बार अपना हाथ काट चुके थे, और न जाने ऐसे कितने ही पैतरे आजमा चुके थे, लेकिन वो सब के सब आज जिंदा है। क्यों? किसी को मरने का शौक नहीं था, क्योंकि सबको जीने की इच्छा थी, पर उनके पास उस दर्द से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं था। जब वो आए तो ऑफकोर्स उसने तरीका मिल गया, और तरीका मिल गया तो हम सब जी रहे खुशी से। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 100% ऑफ द सुसाइड्स कैन बी सेव्ड, 100% with no exception, zero exceptions. 100% of the suicide cases can be saved. Because कोई भी जिंदगी से दूर नहीं भागता, सब अपने दर्द और तकलीफ से दूर भागते हैं, है कि नहीं? और दर्द और तकलीफ शरीर में तो बहुत कम होती है, दर्द और तकलीफ तो अक्सर हमारे मन में, हमारे जहन में, हमारी सोच में होती है कि नहीं? क्या आप आज तक किसी को भी मिले हैं जिसके सोच में, जिसके मन में दर्द ना हो? इनफैक्ट किसी को छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितनों के शरीर में इस समय ज्यादा दर्द है कंपेयर टू मन में? कहां है आपका ये डर, शरीर में कि मन में? कहां है आपकी फिक्र, शरीर में कि मन में? कहां है आपकी चिंता, शरीर में कि मन में? कहां है आपका पछतावा, ये गिल्ट, शरीर में या मन में? कहां है वो? 20 साल पहले किसने चाटा मारा था पर आज तक गूंजता है? वो बचपन में किसी ने गाली दिया था पर आज तक दिमाग उसी में घूमता है? वो मजाक मस्ती में किसी ने धमकी दे देता पर उसकी सोच को छोड़ नहीं पाता। आप ही बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता है? तो अगर ऐसा होता है तो ये जरूरी है कि आप समझें, ये सब बाहर नहीं, दूसरे लोगों के कारण भी नहीं, ये अंदर आप ही के अपने आप के कारण होता है। और अगर ये समस्या है तो हर समस्या के समान इसका भी एक समाधान। इसका नहीं। और दोस्तों, उसी समाधान का नाम ध्यान है। ध्यान मतलब मेडिटेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो नहीं है जो आप में से अक्सर लोग सोचते हैं, उसमें सिर्फ बैठ के ओम, या फिर सोचो कि तुम आत्मा हो, परमात्मा से मिल रहे हो, लाइट हो, ये हो, वो हो, या फिर आप जो अपने भगवान की तस्वीर आप देखना, इमेजिन करना शुरू कर देते हो। ये ध्यान वो नहीं होता है। ध्यान तो उस कला का नाम है जहां आप अपने आते जाते विचारों से अलग हटके उनको देख पाए, उनके दर्शक बन पाए, उनके साक्षी, उनके दृष्टा बन पाए। अधिकतर लोग ध्यान और मेडिटेशन के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं। कोई इमेजिनेशन कर रहा है,
देखो तुम लाइट हो, आत्मा परमात्मा से मिल रही है, देखो तुम्हारे भगवान यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। नॉनसेंस, सपना देखना है, वो इमेजिनेशन है। कई लोग क्या है ये, कई लोग ओम। दोस्तों ध्यान वो है जो आपके अंदर एक काबिलियत विकसित करे कि आप अपने विचारों से दूर हट जाए, ताकि विचार आपके ऊपर अपना पावर मिटा जाए। आपको तकलीफ हमेशा वही चीज देती है, क्योंकि दोस्तों जिस चीज को आप पकड़ के रखे, अगर इस समय ये फोन मेरे हाथ में है, इस फोन को अगर मैं 1 घंटा पकड़ के रखूं तो मुझे हाथ में दर्द होगा, होगा कि नहीं? लेकिन दर्द फोन नहीं दे रहा है, दर्द मेरा फोन को लगातार पकड़े रखना दे रहा है। फोन तो बहुत काम की चीज है ना, वो तो बहुत काम आता है, उसे पकड़े रखना ही दर्द देता है। वैसे ही आपके विचार, आपकी कल्पना, आपकी स्मरण शक्ति बहुत काम की चीज है, लेकिन क्योंकि आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप इसे पकड़ के चिपक के रहते, इसीलिए आपको परेशान कर जाती है। तो ध्यान वो कला है जिसमें आप अपने विचारों से दूर हटके उसके देखने वाले बन जाते हैं, मतलब उससे अलग हो जाते हैं। अब उनका आप पर कोई काबू नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। और दोस्तों ये ध्यान कोई दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे करने की चीज नहीं है सिर्फ, वो तो एंटरटेनमेंट हुआ। ध्यान तो वो चीज है जो आप हर पल हर समय कर पाए, क्योंकि आधे घंटा अगर विचारों से खुद को अलग कर दिया तो आधे घंटे की शांति मिल गई। उसके बाद बचे हुए 23.5 घंटे का क्या? तब वही चिंता, वही अवसाद, वही तनाव, वही एंजाइटी, वही स्ट्रेस और वही बाकी सब जिंदगी। ध्यान वो है जो आप हर पल कर पाए। ये अधिकतर लोग जो ऑरेंज, व्हाइट या न जाने कौन से रंग के कपड़े पहन के, पगड़ी बांध न जाने क्या करके बैठे, माफ करना पर वो अधिकतर उसमें से ध्यान तो नहीं कर रहे हैं। और वो क्या कर रही है आप देखिए और आप समझिए। कोई सिर्फ गाना गा रहा है, कोई सिर्फ कहानियां सुना रहा है, और आप अजीब है कि जा जाके तालियां बजा रहे हो, कहानी सुनते जा रहे हैं। कहाँ खो रहे हैं आप? इस वर्तमान को छोड़ के अगर कहानियों में ही खोना है तो फिर किताब उठाओ, खुद पढ़ना शुरू कर दो। ये भटकाव है, ये एंटरटेनमेंट है। इससे कभी भी आपको इन तकलीफों से, इन दुखों से, इन परेशानियों से आजादी नहीं मिलेगी। बुद्ध ने भी जब मुक्ति या मोक्ष के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखा रहा हूं। और लोगों ने सोच लिया ये तो जिंदगी से मुक्ति का रास्ता है। फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, ही सेड। आपको मुक्ति किससे चाहिए? जिंदगी से? कि इन तकलीफों से, इन परेशानियों से, इस स्ट्रेस, एंजाइटी, इस चिंता से किससे आपको आजादी चाहिए? अगर आप इन सब परेशानियों से आजाद हो जाओ तो आप जिंदगी लंबी जीना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? खुद बताओ। अधिकतर लोग प्लान कर रहे हैं कि मैं अगले बार यहाँ पे आना नहीं चाहता हूं। मैं कहता हूं क्यों आना नहीं चाहते हो? ये इंसान होने में मजा है कि टेबल का लैंप होने में मजा है? ऑफ कोर्स इंसान होने में मजा है ना। अगर इंसान होने में मजा है तो दोबारा आने में क्या, नहीं आने की क्या वजह है? यही वजह है कि आपको लगता है कि ये जिंदगी एक सजा है। वो क्यों लगता है? जिंदगी तो खूबसूरत है, इतने रंग है, इतने लोग हैं, इतनी बातें हैं, आसमान में इतने तारे हैं, इतने खुशबूदार रंग बिरंगे फूल है। क्या कुछ नहीं है जिंदगी में? इनफैक्ट जिंदगी है तभी तो सब कुछ है। पर आप कहते हो कि नहीं, मुझे जिंदगी में ही नहीं आना। असल में ये जो है, ये आपकी सजा है, कोई और नहीं। और इससे अपने काबू में करने का या इससे मुक्त हो जाने का एक ही तरीका है दोस्तों। और तरीका आज का नहीं, ये तरीका सदियों पुराना है, लाखों सालों से चलता आ रहा है। बस कुछ लोगों ने इनको यहां वहां न जाने कहां भटका दिया है।
कोई इमेजिनेशन को मेडिटेशन कह रहा है, कोई विजुअलाइजेशन को कह रहा है, कोई रिलैक्सेशन को कह रहा है, कोई न जाने किसी और चीज को कह रहा है। पर मेडिटेशन रियली मीन्स द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, नॉट पार्टिसिपेशन, नॉट मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन। बस जो हो रहा है उसे होते हुए देख पाना, बिना उससे जुड़े हुए, बिना उसका मतलब निकाले हुए, बिना उसका पार्ट बने हुए। अगर आप अपने विचारों से खुद को अलग कर पाए तो फिर आपके हाथ में शक्ति है कि आप कब उन्हें पकड़े और कब उन्हें छोड़े। आप में से अधिकतर लोग अपने मन को एक पल के लिए भी शांत नहीं कर सकते। उन्हें मन को शांत करने के लिए भी आंखें बंद करके सोना पड़ता है, या टीवी चालू करना पड़ता है, या म्यूजिक लगाना पड़ता है। इन विच केस उनका मन शांत कभी नहीं होता है। होता है? आपका मन एक ऐसा पंखा हो गया है जिसमें शुरू होने का बटन तो है पर बंद करने का कोई बटन ही नहीं। सोचो ऐसे पंखे का क्या होगा? वो जल जाएगा कि नहीं? और वही आपके साथ हो रहा है दोस्तों। तो अगर आपको ये एंजाइटी से, ये फियर से, ये बेचैनी से, ये सब समस्याओं से सच में आजादी चाहिए, तो वो आजादी गोली खा के, गाना गा के, भजन करके, नाच के, झूम के नहीं मिलने वाली। ना आज तक किसी को मिली है, ना कभी मिलेगी। ये आजादी तो उसके विचारों से हमें पानी है। और विचारों से आजादी उनके दृष्टा, उनके साक्षी होने की कला सीखने पर ही मिलेगी। वरना चाहे जो कर लो, कितना कमा लो, कितना पावर पा लो, कितने ही प्रसिद्ध हो जाओ, कितनी ही ऊंची इमारतें बना लो, ये तकलीफ, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। और आखिर में यही आपको जिंदगी छोड़ने पे भी मजबूर कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब सुसाइड कर लेंगे, मैं कभी नहीं कहा चाहूंगा ऐसा कोई कुछ करे। ये कह रहा हूँ कि इसके आपके शरीर के ऊपर भी इतने भयानक परिणाम है स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग के, कि लगातार आपके शरीर को लगता है कि कुछ खतरा है, जिसके कारण आपका शरीर अपने हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, डाइजेशन को रोक देता है, प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। आपके लिवर से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है जो कि बहुत नुकसान करता है, आपका वजन बढ़ाता है। बेसिकली आपका शरीर कंटिन्यूअस एक इमरजेंसी मोड पे काम करता है। और अगर आप कंटिन्यूअस अपने शरीर को इमरजेंसी मोड पे काम कराएंगे तो ऑफ कोर्स मशीन फेल तो होगी ही ना। मशीन का ब्रेकडाउन होना तो लाजमी है। तो आप अपने हाथ से अपने शरीर को तो दोस्तों, आप चाहे जो भी कर रहे हैं जिंदगी में, जैसा भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझा, इसको नहीं जाना, इसको नहीं पहचाना और इसको, तो फिर क्या फायदा किसी और को कुछ करने का? क्या फायदा किसी किताब को पढ़ने का, किसी जगह पे जाने का, कहीं माथा टेकने का, कहीं हाथ उठाने का? क्या फायदा? जैसे कबीर ने कहा है ना कि जैसे तिल में तेल है, तिल में तेल होता है ना, तो जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, चकमक मतलब लकड़ी, तिल्ली का तेल हम निकालते हैं वैसे लकड़ी में आग लगाते हैं ना, तो जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। वो शांति, खुशी, सुकून, आजादी, मुक्ति, जिस चीज की आप खोज कर रहे हो, बाहर कहीं किसी और किसी चीज में नहीं दोस्त, अंदर आप ही में है। और आप उसे अंदर ही पा सकते हैं। उसे पाने का रास्ता
ध्यान है असली ध्यान। तो बस इसी उम्मीद से कि आप सब इस बात को समझेंगे, और सिर्फ समझेंगे और समझेंगे ही नहीं, इस बात पे अमल करने की कोशिश करेंगे, इसे अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, इसे जीने की कोशिश करेंगे। और इसे जीने के लिए पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों में जाना, ये व्रत रखना और न जाने क्या कुछ करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कहीं भी जाओ मन तो वही है। आप जहां हो वहीं आपको अपने मन देखने की कला सीख सकते हैं, और 24 घंटे निरंतर चाहे जो कुछ करे, अपने इस विचारों के दृष्टा, इस साक्षी बन सकते हैं। मैं इस प्रोसेस को लिविंग मेडिटेशन करता हूँ, इसलिए मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के नाम भी लिविंग नकुल है हर जगह। लिविंग मतलब जो हर समय हो रहा है, सिर्फ एक बार हुआ और खत्म नहीं, जो हर समय हो रहा है, हर समय घट रहा है। जैसे समुद्र में लहरें हर समय उठ रही है, हवाएं हर समय चल रही है, सूरज हर समय उठ रहा है और ढल रहा है, आपका दिल हर समय धड़क रहा है, वैसे ही जो हर समय आपके अंदर हो, वही असली ध्यान है। और वही आपको इस एंजाइटी, स्ट्रेस या और दुनिया की कोई भी समस्या से छुटकारा, मुक्ति, आजादी दिला सकता है। वरना तो टाइम पास एंटरटेनमेंट है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इसे अपनी जिंदगी में लाए, उतारे, सीखे और अपने जीवन बनाने की कोशिश करें। ये बहुत आसान है, मैं आपको यकीन दिला दूं, बहुत आसान है। हम तो अपने 5 से 6 दिन के प्रोग्राम में ही सिखा देते हैं, एक एक घंटे में, जहां हम ऑफ कोर्स और बहुत चीजों की बातें करते हैं, रिश्तों के बारे में, कई चीजों के बारे में बात करते हैं, जीवन के पर्पस के बारे में, खुशी क्या है, कई चीजों के बारे में। पर सिर्फ छोटे से कुछ घंटों में ही हमें सिखा देते हैं कि कैसे करना है। इसलिए कहीं जाने की और न जाने क्या कुछ क्रियाकांड कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। आप सब ये कर सकते हैं, आप सब ये सीख सकते हैं, और आप सब इस कोरोना की ही नहीं, बल्कि हर चीज की, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पैनिक, फियर, गिल्ट, इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, और वो शांति हर पल महसूस कर सकते हैं। इस शांति को शायद आप कुछ जगहों पे, कुछ चीजों में, कुछ लोगों में और कुछ अरमानों में ढूंढें। अगर शांति है तो आपके अंदर है, और हर पल मौजूद है। कि अगर वो हर पल मौजूद ही ना हो, ये तो संभव ही नहीं कि आप उसे ढूंढ पाए। आप ढूंढ उससे ही सकते हो जो पहले से ही है, उससे नहीं जो है ही नहीं, है ना। तो मेरा साई तुझ में है, जाग सके जा। इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुना और मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का। मैं जितने भी सेंटर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया, और मेरी जो जीवन में समझ, जो जागृति, जो अनुभूति रही है, उससे आप सभी से साझा करने का मौका दिया। आपके कोई भी अगर सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए हम मौजूद हूँ। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या माइक और कैमरा ऑन करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे किसी, यानी मेरे किसी प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं जहाँ पे मैं सिखाता हूँ, तो अगर आप कहें तो हम अपने वॉलंटियर्स के जरिए यहाँ पे उसकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं। इससे अगर आपकी इच्छा हो तो आप जुड़ सकते हैं, अगर आपको खुद को और जानना, समझना, सीखना हो तो। इसके अलावा हर संडे मेरे कुछ ऐसे सेशंस होते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप आए, जुड़े, और जिंदगी के यूं ही हम कई पहलुओं को समझते जाए और खुद को और बेहतर बनाते जाए हर चीज में, उस मुक्ति की तरफ, उस आजादी की तरफ, उस खुशी की तरफ, उस शांति की तरफ खुद को आगे बढ़ाते जाए। क्योंकि जिंदगी तो एक ही है ना। लोग कहते हैं कि और होगी शायद, और भी जन्म हो गए या और भी हुए हैं, पर हमें क्या पता। ये है, ये तो पता है। और अगर और भी हो तो भी इसे अच्छा करना है, और नहीं हो तो भी इसे मजेदार करना है।
तो जब अच्छे से जीना ही है तो दोस्तों जीना सीखना भी तो जरूरी है। अगर बिना सीखे ही कोई चीज करने जाएंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे ना। उसे सीखना समझना जरूरी है। तो अगर आप जिंदगी जी रहे हैं और आपने खुद को समझने की कोशिश नहीं की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सही में जी रहे हैं? सोचने वाली बात है। तो ठीक है, योगिता कह रही है कि मैं प्रोग्राम्स की लिंक शेयर करूँ। शायद मेरे टीम से यहाँ पे सोनल है। अगर सोनल आप इस यहाँ पे जूम में है तो आप प्लीज मेरे प्रोग्राम की लिंक्स शेयर कर दें ताकि लोग उससे जुड़ पाए। और आप सब मुझसे सोशल मीडिया से, ओके, चिटनवी सेंटर वालों ने भी शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच निविता। मुझे लगता है आपने रेजर पे का लिंक शेयर किया है। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन लिंक का, शायद पेमेंट डोनेशन लिंक का लिंक है। तो हमारे सारे जो 5 6 प्रोग्राम होते हैं उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है। वैसे हम 2,500 लेते हैं, पर आप कोविड टाइम में 500 रुपए तक कुछ भी दे सकते हैं जो आप चाहे तो। 2,500 दे या 500 रुपए दे, कोई भी दे, आप आपकी मर्जी। ये पैसा मेरे पास नहीं आता है, हमारे एनजीओ में जाता है जिसके जरिए हम बच्चों, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, कोविड के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं, झाड़ लगाते हैं, काफी कुछ करते हैं। अगर आप वो भी ना दे पाए तो आपके लिए हम उसको फ्री कर देंगे। आप हमारी टीम को रीच आउट करें या मुझे मैसेज करें अगर आपके लिए भी संभावना हो तो। और हमारे जो संडे सेशन है वो सबके लिए पूरी तरीके से फ्री है। ये दोस्तों ये इसीलिए थोड़ा सा पेमेंट भी, क्योंकि आप उस चीज की कदर करें। कदर तो मतलब बेशकीमती है ऑफ कोर्स, क्योंकि जिंदगी के बारे में है, और जिंदगी की कोई क्या कीमत लगा सकता है भला। लेकिन बस ताकि लोग थोड़े से सीरियसली करें, इसलिए हम इसका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रखते हैं। अगर आप वो भी ना दे पाए तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। तो मैं चाहूंगा कि किसी को कोई सवाल हो तो वो मुझे पूछ पाए। मुझे चैट विंडो पे इस समय लिंक दिख रही है आपको, और फोन नंबर भी दिख रहा है जिससे आप मेरे वॉलंटियर से और टीम से डिस्कस कर सकते हैं प्रोग्राम के बारे में। मुझे भी आप सोशल मीडिया पे कहीं भी पहुंच सकते हैं। योगिता जी से या चिटनवी सेंटर से मेरे बारे में पूछ के, मेरे सोशल मीडिया पे आपकी जिंदगी जुड़ा हुआ कोई भी कैसा भी सवाल हो, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो इसी साथ में आपकी विदा लेना चाहूंगा। योगिता मैम, अगर आप चाहती है कोई सवालों के जवाब देना, आप पूछना तो मैं दे सकता हूँ जवाब, या कोई और डाउट हो। जी, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द सेशन। मुझे लगता है अभी तुरंत किसी के कोई सवाल नहीं है, पर अगर उनके इस सेशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो आपको रीच आउट कर सकते हैं बाद में। ये जो नंबर्स यहाँ शेयर किए गए हैं उस पे आपको रीच आउट, आप रीच हो सकते हैं ना? बिल्कुल, ये नंबर मेरा नहीं है, नंबर मेरे टीम का है, तो मेरे वॉलंटियर्स ओके का है। और आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपका मैसेज मुझे जी, पास ऑन कर देंगे, है ना। ओके, या फिर सोशल मीडिया थैंक पे यू आप मैसेज कर सकते हैं मुझसे, सब जगह, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी। तो मैं आपके सवालों जी का जवाब जरूर दूंगा समय निकाल के। जी। Thank you, everyone. Thank you for being with us. Thank you so much. Bye, everyone. Thank you, Nakul ji. It was a wonderful session. धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहे और हम आपकी जिंदगी में जो भी सहायता कर सकते हो कर पाए। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और ध्यान ध्यान दीजिए।